Hello everyone, let us solve CSE Prelims 2021 paper, paper 1. Okay, in this paper I will talk about how to solve, about the tricks, elimination, common sense, etc. Like how the aspirants they do the mistakes, and how to solve the answers correctly. Okay, in this video maximum 20 questions we will solve, then I will bring up the next video. Okay, let us see the first question. Here is the thing: the governor of the RBI is appointed by the central government, and we know that the RBI is the central bank, and of course central government will only employ. So this seems to be correct. Okay, and then the certain provisions of the Constitution of India gives the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. And we know, mainly in the UPSC, if we get Constitution of India, it provides, it defines, etc, etc. Okay, so generally this statement is wrong, and here also we have read the Lakshmikant, we have read the Bear Act. In anywhere did we find RBI, about RBI? No, so this will be the wrong. Okay, and the governor of RBI draws his power from the RBI Act. Of course, we know that there is RBI Act, and here also there's just correlate. Okay, in this question, it is mainly the focus is upon RBI. Okay, RBI, and RBI. So there is an act given. Then why did the examiner talk about the Constitution of India? Just to make it wrong. That's why the government has government directly employ the RBI from the RBI Act. Okay, so here 2 is wrong, 2 is wrong, 2 is wrong. Answer is 3. And just see the pattern. Mainly in 3 का 2, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 4. If there is 3 statements, 2 is correct, 4 statement 2 is correct, is mainly seen. Okay, and this 5 का 3 and 6 का 4. So this is the most in every 90, more than 90% of the case, 5 ka 3 and 6 ka 4 is right. Okay, now the next question. All casual workers are entitled, with reference to the casual workers employed in India, we have to just mark it in case of India. Okay, all casual workers are entitled for employees provident fund coverage. Okay, all casual workers entitled for regular working hours and overtime payment. Okay, the government can by notification specify that an establishment of a self basis only through its bank account. Okay, here it doesn't say government has done, it say it can. In future also it can, government can do anything. Okay, and it's talking about through the bank account, it's promoting digital India. Okay, so this seems to be correct. So here 2 is wrong. Okay, 3 is correct. Okay, now in the first 2 statements, see, just all casual workers entitled, or casual workers are entitled. So this is the same type of question, same type of option. So इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा. सो लेट अस सी, 1 2 को हटा सकते हैं क्योंकि हम दोनों एक साथ कभी पॉसिबल ही नहीं है करेक्ट हो. एंड इसमें से हमको जनरल देखना है, जैसे कैजुअल वर्कर्स, EPF एंड रेगुलर वर्किंग आवर्स. ये जो ओवर टाइम पेमेंट, रेगुलर वर्किंग आवर्स, ये तो हम कब से बात करते आ रहे हैं, इंडिपेंडेंस से पहले भी बात करते थे कि ये तो जर्नल राइट होता है. ओके, एंड ये EPF एक कुछ नया सा है, तो ये सबके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है. तो ऑफ कोर्स सेकंड इज़ राइट. ओके, हियर भी सी 3 का 2. एंड ये जो पैटर्न है ना, 3 का 2, 4 का 2, यू विल रियलाइज़ कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर इस तरह से, तो हम लास्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चंस एकदम नहीं आ रहा है उसमें हम ये क्वेश्चंस, ये ऑप्शंस ऐसे 3 का 2, 4 का 2 ये लगा सकते. ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्टली टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन. रिसेशन मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है, ये हमको बस माइंड में चलना चाहिए. ठीक है, इट इज सेइंग द कटिंग द टैक्स रेट्स. ओके, it will increase the money supply, and accompanied by increase in interest rate, it will decrease the money supply. So it will be the wrong. And increase in the expenditure on public projects. Okay, this seems to be correct. And next, increase in the tax rate. See, here it will decrease the money supply, so this will be wrong.
and reduction of expenditures. See, both are opposite. तो इनमें से कोई एक तो राइट होगा ही होगा, ठीक. तो ये एक राइट है क्योंकि इट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई. ओके, other things remains unchanged. Market demand for a good might increase. Like here it is saying the demand for a good might increase if, okay, price of a substitute increases, price of its complement. Substitute क्या होता है? Like टी का substitute है कॉफ़ी. लेकिन अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ रही है, ऑफकोर्स लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे टी खरीदना. सो ये सही लग रहा है. एंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? लाइक समझ लो टी बनाने के लिए व्हाट वी नीड, मिल्क एंड शुगर. सो अगर मिल्क की प्राइस बढ़ रही है तो ऑफकोर्स टी की प्राइस भी बढ़ेगी, तो उसकी डिमांड घटेगी. सो दिस इज़ द रॉन्ग. गुड इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज. जस्ट थिंक, कोई एक पर्टिकुलर गुड है, लाइक एग्जाम्पल ले लो मोबाइल. लाइक इफ़ योर सैलरी इज़ अराउंड 50,000, so you will prefer to buy like a mobile of like any low brand, okay. But just think, if your income increases to 5 lakhs, then you will go for the Apple, okay. So of course the good of an inferior, if the good is an inferior good, its demand will decrease. So this will be wrong. So here it becomes, you know, when the price falls, its demand increases. It's a general. So here 4 ka 2. Let's go for the fifth question, okay. With reference to the urban cooperative banks in India, okay, UCB banks, okay, it is supervised and regulated by local boards set up by the state government. Here it is organization, department, institution, yes, central or state. Generally UPSC gives generally it is wrong, okay. And they can issue, it can of course, and they were brought under the purview of the Banking Regulation Act. इतना. And just think, Banking Regulation Act 1949 में इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए होंगे 1949 के बाद. यूपीएससी ऐसा हमसे कभी डिमांड नहीं कर रहा है कि हम सब अमेंडमेंट्स को पढ़े एंड हर अमेंडमेंट्स के बारे में जाए. तो जनरली ये करेक्ट होता है. तो यार इट इज़ करेक्ट. एंड यू नो, लाइक जस्ट सी द सेकेंड ऑप्शंस. दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. एक ट्रिक है, आई एम जस्ट सेइंग. समझ लो अभी हमारा 2026 का प्रीलिम्स 24 मई को है. तो लेट्स सी, जस्ट हम थिंक करें कि यूपीएससी पेपर सेट लास्ट टू मैक्स अप्रैल के एंड में कर ही चुका होगा, ठीक है. बट क्या पता गवर्नमेंट फर्स्ट वीक ऑफ मई और सेकेंड वीक ऑफ मई में ऐसा कोई रेगुलेशंस निकाल दे जिसमें ये यूसीबीज़ इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर इशू कर सके. तब तो ये ऑप्शंस राइट हो जाएगा. तो यूपीएससी इस चीज़ का ख्याल रखता है, वो ऐसा ऑप्शंस बनाए ताकि वो फ्यूचर में भी सही हो. तभी जाके ये सेकंड ऑप्शन सही है. अगर हमें नहीं पता कि वो शेयर कर सकता है कि नहीं, तब हम इस लॉजिक से जाएंगे. एंड हियर ऑल्सो सी 3 का 2. ये पैटर्न ना पूरा पेपर में देखना तो मैक्सिमम टाइम चलते रहेगा, ओके. इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड. ये इन्फ्लुएंस्ड छोटा सा चीज़ है. हम किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं. हम एक कोई गवर्नमेंट, लाइक अभी गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं, ठीक है. एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, एक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट. ये किसी का भी इसमें 0.00001% भी अगर उस बॉन्ड यील्ड पे इन्फ्लुएंस हो गया तो ये राइट हो सकता है. कि हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, उसका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है, रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है. सेम विद द इन्फ्लेशन एंड द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, ओके. सो हियर ऑल विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ फॉर द 7th. These are the 4. Which of the above can be included in the FDIs? Okay. Foreign currency convertible bonds. Of course, this is a bond and it is a foreign currency bond. Of course, it is an FDI. Foreign institutional investment with certain conditions. CSC. To make it perfect correct, UPSC has given with the certain conditions. Like कोई एक FI होता होगा, उसमें कोई कंडीशन लगा दो तो वो FDI बन जाएगा. ऑफकोर्स अगर हमें नहीं भी पता तो ये जितने जर्नल स्टेटमेंट ये राइट होगी. ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. ऑफकोर्स पैसा आ रही है, कोई रिसिप्ट्स है तो बस पैसा आ रही है तो मतलब FDI हो सकता है, ठीक है. तब हमको पता है ये 1-2 तो करेक्ट होना ही है. 1-2 एक साथ इसी ऑप्शन में, एंड सी ये करेक्ट है. नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स. ये तो डिपॉजिट की बात कर रहा है. कोई NRI है वो डिपॉजिट कर रहा तो वो तो हमें, इट इज़ लाइक अ लाइबिलिटी, इट्स लाइक एन एक्सटर्नल डेब्ट.
एंड FDI इज़ नॉट एन एक्सटर्नल डेप्ट, ये एक हमारा इक्विटी होता है, लॉन्ग टर्म इक्विटी वगैरह वगैरह में बात करता है। तो ऑफकोर्स 4 इज़ रॉन्ग। एंड इस वाले ऑप्शंस को तुम लोग जरा सा ध्यान देना। ये ना लास्ट जो भी मैं बता रहा हूँ इसको हम लास्ट में लाइक एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट। जस्ट सी 1 2 3 3 2 4 1 4, ये जो मैक्सिमम ऑप्शंस है वो हम ए में दिया है, तो ये मैक्सिमम जगह देखना ये ऑप्शन राइट होगा। जनरली क्या होता है 1 2 3 कभी सी पे प्लेस होगा या 4 पे प्लेस होगा, तो वो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर वो ए में दे दिया है तो मैक्सिमम टाइम ये सही हो भी सकता है। अगर ये हमें कुछ ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है बट हमें अटेम्प्ट करना है, तब हम ऐसे ऑप्शंस में जाएंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ द डीवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी। जब भी ऐसा बात होता है ना, तब हम लाइक डीवैल्यूएशन का बात कर रहा है, तो लाइक इसको ना साइड में लिख लो कि $1 पहले 70 रुपीज़ था और $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। एग्जाम्पल बहुत यूज़फुल होता है। इम्प्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स। ऑफ कोर्स पहले अगर कोई समझ लो फॉरेन है, USA का कोई आदमी है, वो इंडिया पे आ रहा है $1 लेके, तो उसको पहले सिर्फ 70 रुपीज़ की सामान मिलती थी, अब आ रहा है वो $1 पे 100 रुपीज़ की कोई मटेरियल मिलेगी, तो ऑफकोर्स हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो ये राइट है। इंक्रीज़ द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ये तो डिक्रीज़ हो रही है ना यहाँ पर ही। पहले $1 की 70 रुपीज़ थी, अब $1 पे 100 रुपीज़ आ रहा है, तो इसकी तो वैल्यू डिक्रीज़ हो गई ना। हमें ऐसे सोचो, यहाँ पर इंक्रीज़ को डिक्रीज़ करना इजी था, इंक्रीज़ करना इजी था, तो UPSC ने तुरंत कर दिया। इम्प्रूव्स द ट्रेड बैलेंस, ये हो भी सकता है नहीं भी, बट हमने यहाँ क्या पूछा है, नेसेसरीली। डीवैल्यूएशन नेसेसरीली हो, ये यहाँ पूछा नहीं है कैन। अगर कैन होता तब थर्ड राइट था, बट यहाँ कैन नहीं बोला है, ज़रूर से ज़रूर बोला नेसेसरीली। तो इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, क्या पता हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा हो एक्सपोर्ट से डीवैल्यूएशन के बाद भी, तब तो ट्रेड बैलेंस अच्छा नहीं हो रहा और बिगड़ रहा है। तो इसी के लिए सिर्फ वन ओनली ऑप्शन है। Now the ninth question, which of the following affects the creation of black money in India has been the main cause of worry to the government? Just focus upon the black money and the government. Black money से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेनली सबसे ज़्यादा क्या नुकसान हो रहा है इस ऑप्शंस पर। ओके, डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को इफेक्ट कर रही है? ऑफकोर्स नॉट, ठीक है, हो रहा हो कुछ गवर्नमेंट का इफेक्ट, बट डायरेक्टली तो कुछ हो नहीं रहा है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड द परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन क्वालिटी, यार ये तो हम जनरली देखते हैं कि गोल्ड पे खरीद रही है कुछ भी, तो गवर्नमेंट पे डायरेक्टली इफेक्ट तो कुछ नहीं हो रहा है। लार्ज डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये कितना बकवास स्टेटमेंट है। लाइक द लार्ज डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑफकोर्स होती है, बट इसमें गवर्नमेंट एज सच को क्या असर हो रहा है? कुछ नहीं। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, या देखो सीधा गवर्नमेंट आ गया ना। एक्सचेकर टू द टैक्स एविशन, ऑफकोर्स या गवर्नमेंट का रिसिप्ट्स कम हो रहे हैं तो उनके एक्सपेंडिचर पे भी असर पड़ेगा। हमारा लोन्स बढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स डी इज़ द ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी, जब भी ऐसा मोस्ट आए नेसेसरीली आए हमें उसे बॉक्स करना है। ये हमें देखना है इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशन हमें कब होता है? जब हमारा मनी इंक्रीज़ हो, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो, तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। ओके, द रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, ओके, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इंटरनली डेप्ट लिया, उससे पैसा आ रहा हो तो इंक्रीज मनी हो रहा है, ठीक है, रॉन्ग डायरेक्ट नहीं बोल सकते अभी। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट, पब्लिक को से बोरो कर रहा है। जस्ट थिंक, अगर गवर्नमेंट हमसे पैसा ले रहा है और वो फॉरेन में किसी कोई लोन चुका रहा है, तो फिर डिक्रीज़ हुआ ना मनी सप्लाई, तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ गया तुरंत? नहीं, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट, ऑफकोर्स बैंक से लेके बजट डेफिसिट है उसको दे रहा था, मे बी इट इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड द हियर द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। जस्ट थिंक, ये जो तीनों था ये क्या था? गवर्नमेंट किसी से बोरो कर, किसी से नहीं, सब ओल्ड मनी थे। ऐसा कोई न्यू मनी तो क्रिएट नहीं हुआ, बट यह क्या कर रहा है? न्यू मनी। और यहाँ न्यू मनी डायरेक्ट समझ लो, एक कोई प्रोडक्ट है, एक समझ लो एक प्रोडक्टिव सेक्टर है इतना सा, अब मनी पहले इतना था, अब मनी और आ गया, बट यहाँ प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है पर मनी ज़्यादा आ गया है।
तो मनी की सप्लाई तो बढ़ गई है, ठीक है, पर डिमांड तो उतने का उतना ही है, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, मोस्ट इन्फ्लेशनरी होगा। नाउ द सेकेंड, द मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर अगर किसी को नहीं भी पता है, जस्ट थिंक, एक मनी है, उसको मल्टीप्लाई हो रहा है, सब बोले ये मल्टीप्लाई हुआ, ये और मल्टीप्लाई हुआ, ये और मल्टीप्लाई हुआ, ये और मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, मनी बढ़ते रह रहा है मार्केट पे, ठीक है, मनी, ठीक है। या इंक्रीज़ इन द CRR इन द बैंक्स, अगर CRR बढ़ेगा तो गवर्नमेंट बैंक के पास तो पैसा ही नहीं रहेगा देने के लिए, ऑफकोर्स इट इज़ रॉन्ग आंसर। इंक्रीज़ इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, सेम अगर SLR बढ़ रहा है तो बैंक के पास मनी सप्लाई कम रहेगा, तो इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। तो वो लोन कैसे देगा बैंक के पास? एंड जस्ट थिंक, अभी यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो दो है, इंक्रीज़ इन द CRR इन द बैंक्स, इंक्रीज़ इन द SLR इन द बैंक्स, दोनों सेम टाइप का ऑप्शन है, इनका इफेक्ट्स भी सेम होगा। तो अगर फिर दोनों का अगर इफेक्ट सेम है, दोनों सेम टाइप का काम करते हैं, तो दोनों चाहे एक साथ सही होंगे या एक साथ रॉन्ग होंगे, बट हमें यहाँ एक ऑप्शन चूज़ करना था। ऑफकोर्स दोनों एक साथ सही हो नहीं सकते, तो एक साथ रॉन्ग होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इंक्रीज़ इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल मतलब पीपल ज़्यादा बैंक में जा रहे हैं, बैंक में सेविंग कर रहे हैं, ज़्यादा बैंक में सेविंग्स करेंगे, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, ओके, ठीक है। इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन, अरे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने से मनी थोड़ी जो कि बढ़ जाएगा, वो समझे, समझ लो पॉपुलेशन, पैसा आ ही नहीं रहा है, बट पॉपुलेशन भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, उससे मनी मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? ऑफकोर्स नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी, बट यहाँ पर मेनली हमको देखना है, मेन फोकस है यहाँ पर इसी ऑप्शन पे, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल मतलब डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। विच ऑफ विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल कैन बी कॉस्ट इंक्रीज्ड। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा कब? आएगा ज़्यादा डिमांड कब बढ़ेगी? जब हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं रहेगा तो हम डिमांड क्यों खरीद करेंगे, सीधी सी बात। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, ऑफकोर्स फिजिकल स्टिमुलस, ऑफकोर्स फिजिकल स्टिमुलस मतलब गवर्नमेंट अपना डेफिसिट कम कर रहा है, ज़्यादा पैसा मार्केट में देना चाह रहा है, ऑफकोर्स। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इससे क्या डायरेक्ट कोई समझ नहीं आ रहा आपको, तुमको भी समझ नहीं आएगा, जस्ट लीव इट अभी के लिए, ठीक है। हायर परचेजिंग पावर, ऑफकोर्स हमारा परचेजिंग पावर बढ़ रहा है मतलब डिमांड बढ़ रहा है, इट इज़ राइट। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ऑफकोर्स रॉन्ग, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो गवर्नमेंट, अगर समझ लीजिए RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो हम बैंक से पैसे ही नहीं ले पाएंगे, बैंक हमें दे ही नहीं पाएगा सस्ते पे पैसा, तो हम ऑफकोर्स बोरो क्यों करेंगे? तो ये सीधी सी बात है, रॉन्ग आंसर। हम अब डायरेक्ट ऑप्शंस पे जाते हैं, 1 to 4 सीधी सी दिख रही है हमें, 1 to 4, 3 का हमें पता नहीं, चलो अभी रुकते हैं, बट हमें पता 5 रॉन्ग है, 5 को कट करते हैं साथ ही सीधा ऑप्शन। एंड ध्यान रखना यहाँ देखो 5 का 3 ये भी सही हुआ ना, मैक्सिमम टाइम तुम्हें दिखेगा 90% प्लस 5 का 3 ऑप्शन सही है। अगर वो साइंस का क्वेश्चन नहीं हुआ या फिर सम या नन वाला टाइप्स कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैक्सिमम टाइम में वो राइट होगा, ठीक है। विथ नाउ द 13th क्वेश्चन, ओके। विथ रेफरेंस टू द इंडिया, हमेशा यह ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आएगा ना विथ रेफरेंस टू इंडिया, तो माइंड बैक ऑफ द माइंड चलते रहना वो इंडिया पे होना चाहिए, ओके। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू द डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट। मैं तुम्हें क्या बताया था याद है कि पेपर सेट हो जाता अप्रैल में, बट एग्ज़ाम है हमारा 24 मई, क्या पता इस बीच गवर्नमेंट या RBI ऐसा कोई लॉ निकाल दे या फिर रूल्स निकाल दे तो ये पॉसिबल हो, तो इसको पूरा सही होने के लिए ये राइट होगा ही होगा, ठीक है। ऊपर से यहाँ कैन बोला है, कैन तो कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम टाइम। अब दूसरा देखो, NDSOM, NDSOM इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ RBI। हमें इतना पता है RBI डायरेक्ट गवर्नमेंट G-Secs देती है, उस पर डील करती है, अगर वो G-Secs पर डील कर रही कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा, ठीक है। हमें नहीं पता इस प्लेटफॉर्म, ये हो भी सकता नहीं भी, बट ये ध्यान रखना कोई तो प्लेटफॉर्म से होता होगा, तो ये ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है। 2 नंबर को चलो हम अभी पता नहीं, बट हो भी सकता नहीं भी। अब यहाँ क्या बचा, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज़ जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक एंड द बॉम्बे स्टॉक। अरे यहाँ तो सेंट्रल का बात किया गया, सेंट्रल
डिजिटल डिपॉजिटरी सर्विसेज, ओके। एंड यहाँ पर ही 2 ऑर्गेनाइजेशन या 2 इंस्टीट्यूशन का नाम आ गया, सीधी सी बात है, एक रॉन्ग होता है, तो हम थर्ड रॉन्ग किए। अब इसके बारे में सेकेंड देखो, 1 सही होता है, 1 या 2, आंसर है 1 2। इसको हमें इसलिए सही लेना है क्योंकि 2 और 3 दोनों में 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक रॉन्ग हुआ है, दूसरा ऑटोमेटिकली सही होगा ही होगा। और जब हमें नहीं पता कि वो NDS जो प्लेटफॉर्म है वो है कि नहीं, तो हमें मान के चलना वो है, तभी ना वो RBI G-Secs दे रहा है। इसी के लिए ऑप्शन 2 विथ रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट। यहाँ 2 चीज़ है, वाटर और क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? लोन, जस्ट थिंक, लोन होता है या फिर हम किसी से पैसा मांगते हैं ना, उसी टाइप का। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड द सैनिटेशन सेक्टर। नहीं पता भाई, हमें वाटर क्रेडिट के बारे में आज तक नहीं पढ़ा मैंने, जस्ट थिंक अभी कैसे सॉल्व करना है। माइक्रो फाइनेंस क्या काम क्या रहता है? क्रेडिट देना, ठीक है, या लोन देना, जो भी। ऑफ कोर्स हो सकता है ये सही है। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से आ गया 2 इंस्टीट्यूशन, सीधी से बात, सीधा रॉन्ग करो इसको। इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट द डिपेंडिंग। ऑफकोर्स सही है, 2 को रॉन्ग करते साथ ही हमारा ऑप्शन आ गया। बट अगर समझ लो यहाँ ऐसा आता ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या नन, तब कैसे सॉल्व करना, वो भी तो ध्यान रखना होगा ना। हमें पता है ये सही है, ये गलत है। और एम का बात क्या है? देखो, जब भी एम का बात करें ना, एम का, बट यहाँ देखो सिर्फ एम है, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि मेन फोकस या मेन एम, ठीक है, सिर्फ एम का बात की। एम ना बहुत जर्नल चीज़ है, एम बहुत कुछ होता है। एम और वाटर क्रेडिट का एम तुम बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हो। और एम अगर किसी वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड है तब तो 100% UPSC इसको राइट करता है। देखो यहाँ एम है, यहाँ पुअर पीपल है, या पुअर पीपल है वो अपना वाटर डिमांड किसी सब्सिडी के बिना ही मीट करे, तो कितनी अच्छी बात है। या सब्सिडी हमारा कम हो रहा है तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर कम हो रहा होगा, तो ऑफकोर्स ये सही ऑप्शन है। नाउ द 15th, ओके। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक कौन हो गया? RBI, ध्यान रखना बस। लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू, अरे हमें पता है RBI चाहे एक्सटर्नल बैंक्स है लाइक स्विट्ज़रलैंड बैंक या BIS एक्सेट्रा उनसे डील करती है, या हमारे इंडियन में कोई पब्लिक प्राइवेट बैंक से उनसे डील करती है, या गवर्नमेंट से डील करती है। कभी सुना है RBI डायरेक्ट कोई इंडस्ट्री को लोन दे रही है? नहीं ना, बस इंडस्ट्री या इसको गलत। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स, ऑफकोर्स लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। बैंक को अब समझो बैंक के पास पैसा नहीं है, अब बैंक का एक तरह से जो समझ लो बैंक का कोई बॉस RBI है, RBI से ना वो पैसा मांगने जाएगा, गवर्नमेंट तो उसको पैसा नहीं देगी, इसी के लिए। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट्स, ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ ऑप्शन 2, 3 को काटते साथ ही। अब अगर समझ लो ठीक है, गवर्नमेंट भी RBI से पैसा लेती है, बट वो 1997 में एक वेज एंड मीन्स एडवांसेस निकला था, उसके थ्रू लेती है फॉर 90 डेज ओनली। बट वो भी ना फाइनेंस टू बजटरी डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नहीं देती है, वो बस रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा कैश वैश कम हो जाता है, इसी के लिए वो जस्ट 90 दिन के लिए दिया जाता है पैसा। तो ये हमेशा ऑप्शन रॉन्ग है। एंड R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, भाई कभी नहीं सुना ये, ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ लो, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, इसको बोलते हैं वर्ड ब्रेक डाउन। यहाँ R2 2 R होना चाहिए, ठीक है। जस्ट थिंक, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, देखो 2 R आया, ठीक है। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल अंडर द रामसर कन्वेंशन एक आ रहा है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड, एक भी R नहीं, रॉन्ग। ये आइए इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक R। जस्ट वर्ड ब्रेक डाउन के और ऑप्शन आया ये, ठीक है। नाउ वी विल टेक द 17th, ओके। वाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स भैया उसमें समय क्या दिक्कत आ रही, ठीक है। दे मे रिलीज
lethal quantities of carbon monoxide into the environment. The copper slag can cause leaching of some heavy metals into the, they may release sulfur dioxide. ठीक है, अब देखो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 देखो. कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम, कैन कॉज जस्ट अ लीचिंग बोला कुछ भी हैवी मेटल्स, क्या पता 0.0001% मेट केस ऑफ मेटल्स में होता हो, ये राइट है. दे मे रिलीज, भाई वही 0.00001% भी अगर रिलीज़ हो रहा हो क्या पता, ये राइट है. तब देखो 2 और 3 राइट है, तो वही क्या, ये गया. अब बी और डी ऑप्शन देखो, यहाँ भी तुम मेरे से पूछ सकते हो कि यहाँ भी तो लिखा है मे रिलीज़. ठीक है, अब देखो अब कॉपर कोई प्लांट है, अगर वो यहाँ लीथल क्वांटिटीज़ बोल दिया, या ये भी तो लिख सकता है दे मे रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, बट नहीं, ये प्रीफिक्स ऐड कर दिया लीथल क्वांटिटीज़. तो हमें ना ध्यान रखना है जब भी यूपीएससी इस टाइप का प्रीफिक्स ऐड करे, जनरली वो स्टेटमेंट रॉन्ग करने के लिए देता है. ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन सही. ठीक है, अगर तुम इसको मान सकते हो 1 2 3 भी एग्ज़ाम में ऑफकोर्स उतना ध्यान नहीं रहता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें 100 के 100 क्वेश्चन राइट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, विथ रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. क्या पता यार, हज़ारों ऑयल रिफाइनरीज है, किसी एक का प्रोडक्ट निकल जाए. सम इंडस्ट्रीज यूज टू जनरेट, वही ना भाई, लाखों इंडस्ट्रीज़ है, कोई करता हुआ या यूपीएससी सबको देखने जा रहा है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सीधी सी राइट. इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशंस ऑफ कोर्स, वही ना 0.00001% वाला लॉजिक लगाओ, राइट. ठीक है, व्हाट इज़ द ब्लू कार्बन, नहीं पता, हमने कभी पढ़ाई नहीं, जस्ट वर्ड ब्रेक डाउन. ब्लू कार्बन, ठीक है, कार्बन कैप्चर्ड बाय द ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, आ गया ब्लू कलर. ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेड इन द फॉरेस्ट बायोमास एंड द एग्रीकल्चर, कहीं ब्लू दिख रहा है, कार्बन है ब्लू नहीं है, रॉन्ग. कार्बन पेट्रोलियम नेचुरल गैस, कार्बन है बट ब्लू नहीं है, ये तो सीधा ब्लैक आ गया ना. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से हम ऐसा सोच सकते हैं वो तो निकल रहा है, सीधी सी बात, रॉन्ग. कार्बन प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, ठीक है, मान सकते हैं ये ब्लू है, बट यहाँ देखो मोर स्पेसिफिक हमें ओशियंस कोस्टल इकोसिस्टम्स है, जनरली हम ब्लू उसी से रिलेट करते हैं, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू कार्बन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. In nature, which of the following is most likely to be found surviving on the surface without soil? यहाँ मोस्ट लाइकली बोला है एंड विदाउट सॉइल. या अगर मोस्ट लाइकली नहीं पूछता, जस्ट बोलता कि विच कैन बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल, तो हम चारों का ऑप्शंस राइट कर सकते थे, बट यहाँ ऑप्शंस पे देखो चारों नहीं है, तो हमें पता है कोई ना कोई तो रॉन्ग है. ठीक है, अब ध्यान लगाओ ऑप्शन 4 मशरूम. जस्ट थिंक, मशरूम हमने कहीं कहाँ का देखा है, सॉइल पे उगते हुए कहीं देखा है, पेड़ के नीचे, कहीं डर्टी एरिया पे. ठीक है, तो ऑफकोर्स उसमें हम मान सकते हैं कि सॉइल की ज़रूरत है, तो ऑप्शन 4 हटाए. एंड लिचेंस एंड मॉस, ऑफकोर्स दोनों सही है. अगर तब भी नहीं आ रहा है, हमको कन्फ्यूजन है पी और सी, और इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमेशा मैक्सिमम ऑप्शंस के पास जाना है. हमें ये मान के नहीं चलना है कि इसमें सिर्फ जब यूपीएससी 4 बनाया, 4 का 2, तब हमें मैक्सिमम टाइम 2 चलना. अगर हम मानना है गैसिंग तो सी मारेंगे. ओके गाइज, नाउ लेट मी ब्रिंग द अनदर वीडियो, देन वी विल डिस्कस. अगर इसमें से भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, तब मैं आगे कुछ अगर सोल्यूशन है उस डाउट का तो मैं उसे प्रोवाइड करूँगा तुम्हें. ओके.